Hi viewers, this is Kangna Vishali from Taza Talks on Spotify and Apple Podcast. And आज हमारे बीच में है निलूशा जो एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं एंड रिनाउंड कोच हैं, सिक्किम से हैं. सो हम वेलकम करते हैं निलूशा जी का. हेलो मैम. Namaste. नमस्ते. Namaste. I am good. How are you? We are good. We are बहुत fine. So Nilusha, आप tell us something about yourself. So, I just started my career with yoga 6 months back. Though I've been practicing and preaching yoga since 3 years almost now. It has been a life-changing activity for me. It has changed me and my perspective a lot. So we look at yoga only as a way of physical stress management कि हमारा ये दर्द हो रहा है, वेट लॉस करना है, आज हमें ये दिक्कत हुई है, बट इट इज मोर अबव इट. मतलब फिजिकल मैनेजमेंट से बहुत ऊपर है योगा. मेंटल मैनेजमेंट, मेंटल स्ट्रेस मैनेजमेंट, and this is what I've learned in past 6 months coming across this course. It has given me a lot of energy to share what I actually learn myself every day. And the main motive of teaching yoga is to spread awareness about yoga, that it's not just physical and body management, it's mental management also, जो हम easily accept नहीं करते हैं दुनिया में कि हाँ हमें stress है. Correct. That is my main motive of teaching yoga. आज जब स्टूडेंट मेरे को आके बोलते हैं कि वेट लॉस के बाद वो एक पॉज लेते हैं, फिर बोलते हैं स्ट्रेस, then I say it's totally okay if you talk about stress. There's nothing to fear. And that's how I actually am in love with yoga since 3 years, I can say right now. मैं ये जानना चाहती थी मैम कि यही एक रीजन है आपका वर्किंग एज एन योगा इंस्ट्रक्टर, और इज देयर इज समथिंग बिहाइंड this also that inspires you every day to work as an instructor or to get, because see yoga सुनने में 4 letters का एक word है, but I can understand, I can see you, I can feel like कि जो आप करती हैं उसके अंदर आप बहुत अच्छी तरह रमी हुई हैं, and every day you are learning. It's a Yes. journey, you are learning everything. तो it's just that इसके अलावा भी कुछ और चीज है जो आपको रोज मोटिवेट करती है एंड यू गेट अप एंड वर्क ऑन इट एवरी डे. So योगा का एक है नियम. अगर हम हर रोज प्रैक्टिस नहीं करते हैं और हम बोल देते हैं कि हाँ कि मैं एक योगा टीचर हूँ, मैं योगा सिखाती हूँ, इट इज वेरी रॉन्ग. बिकॉज अगर हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद सीखेंगे नहीं, खुद आगे उसको अपने बॉडी में एनालाइज नहीं करेंगे, तो हम टीच क्या करेंगे? वी आर टीचिंग रॉन्ग. सो एवरी डे माई मेन मोटिव इज नॉट दैट कि बस मेरे को करने के लिए करना है. इट हैज जस्ट बिकम लाइक अगर मैं हर रोज खाना खा रही हूँ और तो वैसे ही मेरे लिए योगा हो गया है आज के दिन. अगर मैं एक दिन भी योगा प्रैक्टिस नहीं करती हूँ या कुछ भी मेडिटेशन भी नहीं करती हूँ, आई फील वेरी disturbed from my mind, disturbed from my body. I feel lazy, I don't feel like doing anything, I'm lethargic all the time, and मेरा बहुत mood swings होता है. And if I'm practicing just for 15 minutes, अगर मैं 15 मिनट भी योगा आसन मैट पे आ जाऊँ, प्रैक्टिस कर दूँ, I feel very relaxed. And बस इस mental stress को awareness देना is not my main motive of teaching yoga. It's just कि मतलब लोगों को पता चले, लोगों को मैं मोटिवेट करूँ, लोगों को अवेयरनेस होए, लोग खुद उसको सीखे और आगे उनको स्प्रेड करें. दैट इज माई मेन मोटिव. इफ जस्ट अगर मैं आपको बताती हूँ और आप सिर्फ सुन के अपने ऊपर यूज कर लेते हो, बट अगर आपको वो बेनिफिट दिखेगा तो आप 10 लोगों को बोलोगे. Exactly. That's more important for me. Okay. So Nilusha, Very true. if I talk about strengths and weakness, तो Yes. कुछ आपके क्या इसके अंदर, मतलब आपके क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस रही हैं?
एज आई टोल्ड 6 months पहले मैंने डिसीजन लिया था ऋषिकेश जाके योगा सीखने का. एंड उससे पहले जैसे हम सब लोग मेंटल स्ट्रेस का बात नहीं करते. That was my weakness, but today I know how strong I am with my mental thing, how strong I am with my perspectives, how strong I am with my points to keep in front of people. I don't hesitate. That has now become my strength. But my only weakness is if I don't practice, I just lose it everything. I just lose it all. So practice has become my strength, and now my mental thing, my mental stress, which was a weakness, is no more a stress. It has now become my strength. I know it. वो तो है ही, practices makes a man perfect. Yes. Perfect. And if you are mentally strong, ऐसा कोई आसन नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो. मैं लिख के दे सकती हूँ. आज मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैम हम बिगिनर हैं, कैसे करेंगे. मैं उनको सिर्फ यही बोलती हूँ, आप मेरे को 1 week दो, मैं आपको वो करके दिखाऊंगी जो आप सोच भी नहीं सकते आप कर सकोगे. पर आपको कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, वो आपके ऊपर है. मैं आपको फोन करके बोल सकती हूँ कि आओ क्लास आ जाओ, पर अगर आप नहीं आओगे, आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाओगे, तो फिर मैं भी नहीं कर सकती वो चीज़. That is most important. Yes. Yes. आप जब काम करती हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो Yes. एवरी स्टूडेंट हैज देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव डेफिनेटली. Yes. तो हर स्टूडेंट के साथ अलग एज है, अलग बैरियर्स है, अलग रिक्वायरमेंट्स है. तो हाउ Yes. डू यू डिसाइड कि मुझे इसके साथ इस तरह से करना है, मुझे इनके साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेंटल पीस आज तो मेरे ख्याल से नर्सरी के बच्चे को भी है और 90 साल के इंसान को भी है. तो मेंटल पीरियड में एंजाइटी इश्यूज बहुत हो रहे हैं. Yes, I agree. हाँ, and तो ये तो वैशाली जैसा इट्स आपने एट कहा कि हर बच्चे को भी हो रहा है और बूढ़े को भी हो रहा है, तो एंजाइटी इश्यूज तो हैं, बहुत सारे हो रहे हैं. ठीक है ना. तो दिस इज जस्ट कि हाउ डू यू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट. इट शुड बी वर्क that you need to initially start work on this passage and then gradually turn into this passage. तो ये आप किस तरह से अपने स्टूडेंट के साथ डिसाइड करते हैं? So I have people from 18 years of age to I have people who are like quite older. सबका जी. बॉडी का वे ऑफ परफॉर्मिंग एंड आसना, वे ऑफ मेडिटेशन, वे ऑफ फोकसिंग इज वेरी डिफरेंट. किसी को मेडिटेशन बहुत लंबे समय के लिए चाहिए होता है कि आप प्राणायाम आधे घंटे तक कराओ, उसमें मेडिटेशन कराओ, आधा घंटा आप आसन कराओ. किसी को चाहिए होता है कि आप आसना ज्यादा कराओ, मेडिटेशन और प्राणायाम लास्ट के 10 मिनट कराओ. नहीं भी कराओगे तो हम खुद से कर लेंगे. ऐसा होता है. ठीक है. सो मैं स्टूडेंट्स को जैसे अब मेरे ग्रुप में 10 बच्चे हैं, तो मैं पर्सनली सबको गाइड करूंगी. अब सबके बॉडी कैपेसिटी, कोई वही चीज 10 बार कर सकता है, कोई वही चीज सिर्फ 2 बार करके थक जाता है. एंड अगर हम एक योगा आसना भी कर रहे हैं, तो उसमें भी एक मेडिटेशन है, वो भी एक मेडिटेशन पे ही है. अगर हम आईज क्लोज करके वो एक आसन पे फोकस करेंगे, वो हमें एक मेडिटेटिव पर्पस हेल्प करेगा. एवरी क्लास इज सेम फॉर एवरी स्टूडेंट. मेरा हर जो कोर्स होता है इट्स सेम, बट मैं सामने वाले स्टूडेंट से पूछूंगी, आप मेरे को फीडबैक दो कि अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं आपको वैसे गाइड करूंगी कि आप ऐसे करो. अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज और कराओ, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप और करो. बट मैं बायसनेस नहीं दिखाऊंगी कि उससे हो रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप भी करो. बायसनेस इज नॉट इम्पोर्टेंट. एंड जैसे आपने बोला कि हर छोटे से छोटे बच्चे को भी एंजाइटी है, बड़े से बड़ों को भी एंजाइटी है. आयुर्वेदा हमें ये सिखाता है, योगा हमें ये सिखाता है कि इफ यू चेंज योर लाइफस्टाइल, द वे ऑफ ईटिंग योर फूड, द वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, द वे ऑफ योर रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज, अगर आप उसमें 10% भी चेंज लाओगे, तो आपको दिखेगा कि आपका एंजाइटी में आपका डिफरेंस आ रहा है, आपका वे ऑफ बॉडी में डिफरेंस, आपके माइंडफुलनेस में डिफरेंस आ रहा है. सो आई गाइड देम दैट वे कि अगर किसी को लगे कि बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, तो मैं उसको बोलूंगी कि आप ये हैबिट्स में चेंज लाओ इन योर डे टू डे एक्टिविटीज. सो एक बारी में तो 1 month में तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि आपको रिजल्ट दिखेगा. नीदर विल आई टेल कि 1 month में आपको रिजल्ट दिख जाएगा, पर थोड़े चेंजेस दिखने लगेंगे.
धीरे धीरे it will become a habit and then you will know कि हाँ this is good for me and it is helping me. ओके। तो नीलिशा, जैसे आपने बताया कि आप 3 साल से हैं, तो आगे आपके क्या मतलब प्लान्स, कुछ इंस्टीट्यूट्स खोलने का है पैन इंडिया में, अलग अलग ब्रांचेस, Expansion. ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं, कुछ ऐसे टारगेट्स हैं आपके? I have a huge aim with yoga, but my family has a different aim as of now. So I am actually not willing to talk because until and unless I'm not sure about my 1 or 2 years how my family has planned for me. If that works, then in my near future I might plan for something big. Okay. मतलब that is your targets basically you have settled कि ये हमने करना है, either करना it is in a coming future or it is like in a future, it is that things has to be done in my future, that Yes. is important. So मतलब I हमारे am भविष्य में सॉरी हाँ जी बोलिए. हमारे भविष्य में एक बहुत बड़ी योगा इंस्ट्रक्टर हमारे समाज को मिलने वाली है, ये Yes. बहुत बढ़िया बात. Yes. या जी. तो नीलिशा, अब जैसे मेडिकल टर्म्स में भी कई लोग होते हैं, तो उनको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, तो आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं या ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनको आप ट्रीट करती हैं? Yes, so I already have students with diabetes, type 1 diabetes, PCOD, and since मैंने अभी prenatal postnatal का ही course किया. I've just learned prenatal postnatal. So I have one student who is pregnant and I'm helping her guide just under the instruction of a doctor. But Okay. yes, so Okay. Prenatal postnatal without doctor's permission I cannot accept a class, but for type 1 diabetes and PCOD I have actually helped my students recover and get their periods with a natural flow. And since type 1 diabetes is only treatable with medicines and under doctor's prescription, not that way, I'm helping her like control her things, जैसे thirst. पहले वो 2 सूर्य नमस्कार में थक जाती थी, आज वो सबसे ज्यादा सूर्य नमस्कार करती है मेरे सारे स्टूडेंट्स में. ओके। अरे वाह. Yes. मैम, एक चक्रास के बारे में बहुत बात की जाती है. Yes. जो हमारी बॉडी के 7 चक्रास, राइट? हम्म. इसके बारे में हम सुनते हैं, बहुत ज्यादा बात की जाती है. तो आप Yes. हमारे व्यूअर्स को कुछ इनके बारे में एंड डू दैट आल्सो रिलेटेड विद योगा, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? Yes. So there are 7 chakras in our body. It starts from the crown to the root, and every chakra is very important to our regular day-to-day cycle. अगर हमारा कुछ भी हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, that's the heart chakra. There is some blockages. अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, there is some problem with your मूलाधारा चक्रा. अगर हम किसी को नोटिस करते हैं उसको बोलने में दिक्कत हो रही है या फिर कुछ मतलब अपना वर्ड्स रखने में दिक्कत हो रहा है, that means there is blockages with the throat chakra. So there are 7 chakras with everything associated in our body. अगर हम बोलते हैं कि हमारे सेक्स में प्रॉब्लम आ रहा है या हमें इमोशंस को वैसे रिकवर करने में प्रॉब्लम आ रहा है, then there are chakras. Everything is related to your chakra. And there are processes, there are yoga asanas to deal with those things. हर चक्रा के लिए asanas है, हर चक्रा के लिए अलग therapies है. So since I am also a sound healer, I give 7 chakra healing. So उसमें क्या होता है, I release energies into those chakras. I give my positive energy to the person receiving the healing and take their negativity out from the body. So हर एक चक्रा का एक्टिवेटेड रहना नहीं रहना वो आपके ऊपर भी है. आधा आपका, जैसे मैं बोलती हूँ, लाइफस्टाइल आपका बहुत इफेक्ट करता है आपके हर एक चीज में. पर मैं ये भी नहीं कहती आज मैं योगा करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ब्लॉकेजेस नहीं होंगे कहीं ना कहीं पर ब्लॉकेजेस. आई नीड टू वर्क ऑन इट, आई नीड टू रियलाइज इट, देन आई हैव टू वर्क ऑन इट. अगर आपको नहीं ऐसा एहसास होता है, then you can go to any practitioner, any yoga teacher. Like even I can guide anybody कि हाँ आपके ये चीज में प्रॉब्लम है, and I can help that person release that emotions, release those energies into those chakras. So this is how
लोगों को समझ नहीं आता एक एट अ गो कि चक्रास क्या है, बोलेंगे सब बोलते हैं कि यू हैव बिकम अ टू मच फिलोसफी, बट इट इज मोर देन अ फिलोसफी. Acceptance is really important with this thing in yoga, basically. मैंने एक्चुअली आपसे इसीलिए ये क्वेश्चन किया था मैम, क्योंकि Yes. थोड़ा थोड़ा ज्ञान और ये जो है ना, ये हमारे को बहुत ज्यादा मेस्ड अप कर देता है. Yes. अगर आप ऑलरेडी इंस्ट्रक्टर हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, तो आपसे दी हुई नॉलेज जितने भी हमारे व्यूअर्स सुनेंगे, मैं सुन रही हूँ, तो माय क्लाउड्स विल बी क्लियर. मुझे Yes. उसके बारे में एक छोटी मिले या कम मिले या ज्यादा मिले, मगर वो सटीक जानकारी मिले, वो इम्पोर्टेंट है. Yes. सही जानकारी होना इम्पोर्टेंट है. इसीलिए मैंने आपसे यस, एकदम सही जी. बोले. पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं हो, राइट नॉलेज नहीं हो, ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस है जो आपको 10 चीजें बताएंगे. बट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वर्ड ऑफ माउथ, माउथ टू माउथ, अगर आपको सुनने को मिलता है, देन दैट्स अ डिफरेंट व्यू ऑफ इनटेकिंग द नॉलेज. आप एकदम सही बोल रहे हैं. यस, एग्जैक्टली. थैंक यू. तो निलिशा, आप कितने बैचेस लेती हैं दिन में? जो So- ऑनलाइन बैचेस हैं, ऑफलाइन हैं, पीटी हैं, इस तरह से कितने आपके बैचेस हो जाते हैं? So right now I'm not taking any offline batches because it does not give me flexibility to go around. So I'm only taking online batches. I have 5 batches as of now running, 3 group batches and 2 personal training batches. And they start from 7:15 in the morning, as since it's winters. During summers my classes used to start from 6 in the morning. ओके, तो आपके स्टूडेंट्स Yes. जो हैं वो सिक्किम से ही है या ऑनलाइन कहाँ से हैं? No, they are from all around. So my one personal batch is from London. ओके, And yes, and I have students from south as well as you can say north. जैसे दिल्ली से हैं, कोई केरला से है, कोई सिक्किम से भी है, कोई वेस्ट बंगाल से है. It's all distributed. I don't have as in particular कि मतलब लोकल जैसे जिनको मैं जान पहचान हूँ वो लोग मेरे को ज्वाइन कर लिए, सिर्फ वही मैम वो नहीं. ज्वाइन I नहीं have from करते. मैम वो ज्वाइन नहीं करते. सॉरी I totally accept. I've मैम. been through it. एक्चुअली हमारा पर्सनल पे दिया हुआ ज्ञान जो होता है ना, वो हमेशा नुकसान दे जाता है. अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट अगेन, आप मुझे ये बताइए, व्हाट मेथड्स डू यू यूज टू मैनेज इन कॉन्फ्लिक्ट द क्लासेस? आप अपनी क्लासेस को किस तरह से मैनेज करती हैं? आप हर बच्चा भी, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बताई, लंदन से राइट आपका बैच चलता है, Yes. आपका नॉर्थ इंडिया से चलता है, ऑल ओवर द मींस लंदन से चलता है, तो मैं तो ये कह सकती हूँ कि आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड बैच चल रहा है. Thank you. ठीक है ना? और कमिंग फ्यूचर डेज के अंदर डेफिनेटली यू विल बी एंगेज विद द मेनी ऑफ द पीपल अराउंड. Yes. तो जैसे ये आप इनकी क्लासेस, इनके टाइमिंग्स को किस तरह मैनेज करते हो? बिकॉज मेनी थिंग्स अराउंड यू, आप अपनी फैमिली है, लाइक हमारा टाइम साइकिल अलग है, उनका टाइम साइकिल अलग है, आपके नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स के टाइम साइकिल अलग है, तो उसको किस तरह आप मैनेज करते हो? हाउ डू यू मैनेज योर स्टूडेंट्स विद योर टाइम? So one thing before I start my classes, I tell everybody communication is the only key. अगर मैं आपको communicate नहीं करूंगी कि आज मेरे को यहाँ जाना है, आज मेरे को ये काम है, can we shift the timings? हम flexibility रखेंगे कि अगर student भी comfortable होना चाहिए, मैं भी comfortable होनी. जैसे कल मेरा batch 5 o'clock चल रहा था, एक student को उसको ऐसा था कि 5:30 करते हैं batch को. So I communicated with every student in that batch कि can we shift the time to 5:30? किसी को problem नहीं होना चाहिए because it's a group batch. So I shifted my timing to 5:30 as per everybody's confirmation because communication was important. I communicated. Now, as you told, the girl from London, since it's a vast hours difference between London and India, we communicate like if she has some work and उसको अगर मेरा group batch join करना है, I'll take permission from all the members in the group. Since we are already 10 members in a batch, can I accept one student because she has some personal reasons she wants to join the group batch? If everybody agrees, I accept. Else I change my timing further from the group classes so that I can adjust her class.
ऐसा नहीं कि मैं क्लास को कैंसिल कर दूंगी बिकॉज आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। देयर 24 आवर्स कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो ही जाएंगे टाइम। आपका टाइमिंग जो होता है वो टोटल क्लास के अंदर कितना टाइम आप अपने बच्चे को, एक स्टूडेंट को आप देती हैं? सो आई टेक माई क्लासेस फॉर 1 hour क्लास होता है जिसमें 45 minutes आई डेडिकेट टू योगा, आसनास एंड postures, and for rest 15 to 20 minutes. So between every class I have a gap of 15 minutes. I take a gap of 15 minutes because नहीं पता क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, किसी का क्वेश्चन हो सकता है, डाउट्स हो सकते हैं, उसको क्लियर करना हो। और आसनास के बाद प्राणायाम मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। सो आई डेडिकेट 15 to 20 minutes, कभी कभी 20 minutes से ऊपर भी हो जाता है। So that's why between 2 classes I always have a buffer of 15 minutes. Okay. कि Okay. मतलब मैं हड़बड़ी करके बस प्राणायाम खत्म ना कर दूं क्लासेस का। अच्छा, okay. Yes. तो निलुषा, आपको अगर कोई इवेंट्स प्रोवाइड होते हैं, कोई आपको इनविटेशंस आते हैं, तो आप ट्रैवल भी करती हैं? As of now I have not because मैंने स्टार्ट ही किया कुछ महीनों पहले सिखाना। So as of now I have not received any, but I am free to travel. Okay, you're free to travel. Yes. तो मतलब आगे कमिंग अप फ्यूचर के अंदर अगर आपको इवेंट्स मिलेंगे तो आप वो भी करेंगे हमारे साथ? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो आप जैसे कि हमारे स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पे हैं अभी, तो मैं ये चाहूंगी कि आप अपने लिंक्स यहाँ पर शेयर कर दें सो दैट पीपल कैन अप्रोच यू डायरेक्टली, कि उनको पता चले कि निलुषा कौन है, क्या है, बिकॉज इस इंटरव्यू का मतलब ही यही है कि Yes. आपको डिजिटली ग्लोबली प्रमोट किया जाए। तो आप अपने लिंक्स यहाँ पे शेयर कर सकती हैं इफ यू वांट, तो आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। So I only have Instagram platform as of now. Follow me with @Nilusha_Yuj, and you can. I'm 24 hours available for any questions, any query. I have people who have not joined my classes and they come up with doubts like उनको varicose veins है, उनको ये pain है. So it's not that अगर आप मेरा class join नहीं करते हो तो I won't guide you. I'm the most blessed कि मैं आपको guide कर सकूँ, अगर आपको मैं help कर सकूँ with any of your queries, and you're free to join any of my classes. अगर आपको trial classes लेने हैं, I provide 1 free trial class group classes, and you can decide if you want to, if you feel comfortable, because choosing a teacher is not upon their कितने followers है, कितने likes है, कितने reels वो share करते हैं. It's about how compatible you are to me. You should feel that vibe, you should have that connection before you join my class. Okay. So thank you so much Nilusha, आप हमारे बीच में आए, and thank you so much viewers. Thank you so much Vaishali. Thank you so much ma'am. अच्छा लगा आपसे मिलके मैम। And Thank you so much. viewers, thank you so much. Please हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए निलुषा जी से मिलके आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me here. It was a blessing to share my views with you all. Thank you. you.